first, right? So have your introduction from Ujjwal. Ujjwal, your introduction, complete introduction I want. Yes, your name and your qualifications. Please be fast. Okay. Okay. Right. Okay. What is your aim of life? क्या बनना चाहते हो आप? Okay. Very good. Next, please. Aim of life. Okay. Banker. Next, please. Okay. Very good. Next, please. Very good. Next. My name is Neha. I am in the University of College. Okay. And my aim of life is to be and successful. Very good. Next, please. Aman Mo. I want to be successful chartered accountant. Very good. Next, please. Aim. Okay. Next, please. After my annual economics, my other one is University. My name is Shinuganagar. My aim is that I want to be English teacher. Next, please. Hello friends, my name is Himanshu Gambhir. I am from Shri Ganganagar. I am currently working in PNP and want to grow in this sector. Next, please. I'm Prabha Sharma. I'm Pastor Chandra from Musavar Public School. My aim is want to be a successful scientist. Next, please. Next, please. My name is Yasika and I am pursuing 5th standard from Nursery Public School. My aim is to become doctor. Next, please. Next, please. Okay. Next, please. Next, please. Hello friends, I am Anshu Karna. MBA and MBA from Maratha University. I want to become successful believer. Next, madam. Yeah, I'm choosing BA. I'm BA from Maratha University. I want to be a successful player. Okay. So, students, now it's time to start our topic. Our topic is today psychological. Okay. We have our totally psychological lecture, and the topic is related to public dealing. Right? All of you. जिसे हम हिंदी में लोक व्यवहार बोल सकते हैं. Students, up to now जो भी lectures हमने सुने हैं, they are based on tenses, they are based on your vocabulary, they are based on various things, body language even. But if you think that, sir, is it enough? So I will say that in personality it is not enough, because personality means how we behave in a given situation. So the main thing which we should learn here is behavior also. हमारा behavior इतना बढ़िया होना चाहिए that to be a successful person, everybody should admire you. That yes, a dynamic person has reached to us. Let's see that how we can develop our things. So I want one good volunteer to read for me, and I want once all of you that you should come on the topic of how can I make more friends. Are we all ready? Okay, please come on the topic. We'll start. Yes. Friends, you can get the answer and become the master either by reading a book on physical Psychology and or by meeting the greatest winners of friends. देखो दोस्तों, हमारा राइटर कहता है कि या तो हम बहुत ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर हम साइकोलॉजी की किताब पढ़े तो, और दूसरा वे व्हाट ही टोल्ड दैट वी कैन मीट अ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स. एक यारों का यार है, इफ यू मीट हिम हम उससे सीख सकते हैं कि हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. The world has even a known. बिल्कुल, और वर्ड का वर्ड उसे जानता है, कंप्लीट वर्ड उसे बहुत अच्छे से जानता है. चलिए, Who is he? अब वो है कौन? You may meet him tomorrow coming down the street. अब वो कल आपको रोड पे मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा हिंट हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. चलिए. When you get with him,
10 feet of him, he will begin to walk back. Wag his tail. Even वो अपनी पूंछ हिलाने लगेगा अगर आप थोड़ा सा उसको पुचकारोगे, पास पहुंचोगे, उसके करीब पहुंचोगे तो। If you stop and pet him, he will almost jump out of his skin to show you how much he likes you. बिल्कुल, अगर आप रुक के थोड़ा सा उसको पुचकार लोगे तो he will almost jump out of his skin to show you that how much he loves you. And you know that behind this show of affection on his part, there is no ulterior motive. और उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है स्टूडेंट इसके लिए, मतलब कि he don't want anything from you, he don't have any interest in you. Please continue. He does not want to sell you any. ना तो वो आपको कोई रियल एस्टेट बेचना चाहता, he doesn't want to sell you any real estate. And he does not want to marry you. Or even doesn't interested in to marry you. Did you ever stop to think that a dog is the only animal that does not has to work for a living? A man has to live. बिल्कुल स्टूडेंट्स कभी नोटिस करो कि डॉग, इसके अलावा हम लोग किन किन को घर पे रखते हैं? We keep cow, we keep hen, we may keep goat. So many people, so many are using or keeping their homes. So many pets, but all are useful and giving benefits indirectly or directly. But dog is only giving you love. Hen has to lay an egg for you. Cow has to give milk. Cow milk नहीं देती, you replace it. Or sometimes you send the cow in various places, cow pen and other places. Yes, continue please. But a dog makes his living by giving you nothing but love. बिल्कुल, dog makes your living nothing, but only he gives you love. अच्छा, राइटर आपको ये सब क्यों बता रहा है? There is a reason. एक reason है ये, क्योंकि he is teaching you psychology. So first of all, he is guiding you the importance of love. This material, whatever we are going through, was published in the 18th century. तब ये पब्लिश हो चुका है. अगर आप में से किसी ने बुक का नाम सुना हो, यू कैन विन, सुना है आप में से किसी ने? जीत आपकी, यू कैन विन ऑफ शिव खेड़ास, काफी फेमस हुई हमारे इंडिया में. बट वो जो फेमस हुई, वो बुक फेमस हुई आज से ठीक 15 years बैक और 20 years बैक. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बुक हमारे इंडिया में फेमस हुई थी, वो बुक 100 साल पहले ऑलरेडी लिखी गई थी. एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. दैट्स अ वेरी डायनेमिक बुक. अगर कल आप किसी को कोई गिफ्ट करना चाहो ना किताब, तो आप उनको एक किताब गिफ्ट करना. उस किताब का नाम है लोक व्यवहार, हिंदी में है. इफ यू वांट somebody that he is unable to understand English, you can gift that person in Hindi the book Lok Vyavhar, and the English version of that book is How to Win Friends and Influence People. The writer is Dale Carnegie, and this matter, this matter is taken from that book only. That is totally based on psychology, teaching you in a very dynamic manner, but till yet he has only taught you the importance of love. कि प्यार की कितनी importance है दुनिया में. Please continue. The New York Telephone Company made a big study of telephone conversations to find out which word is the most frequently used. बिल्कुल स्टूडेंट्स, न्यू यॉर्क टेलीफोन कंपनी मेड अ सर्वे कि लेट्स सी कि बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा यूज होता है. एंड दे मेड अ सर्वे एंड दे लिसनड एवरीबॉडीज टॉक्स एंड एवरीथिंग. दे मेड अ सर्वे एंड दे सर्च वन थिंग. प्लीज कंटिन्यू. You have guessed it. It is a personal pronoun I. मैं इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. दुनिया में हर व्यक्ति के लिए जो मैं शब्द है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और इवन आई कैन से इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एक छोटे बच्चे को लेते हैं हम, व्हेन ही इज ऑफ 1.5 year, 2 year, 3 year, अप टू दैट ही विल स्पीक नेम. आप नोटिस करना कभी, एक छोटा बच्चा, नेहा अगर 2 साल की है और नेहा ने कोई चीज ब्रेक कर दी, मैं बोलूंगा किसने करी है, तो नेहा के मुंह से निकलेगा नेहा ने करी. कभी नोटिस करना. आज अगर सिया बैठी है, सिया अगर 2.5 years की है और मैंने कहा सिया ये टेबल किसने नीचे गिरी, और सिया स्टेट सर, देखना सिया क्या बोलेगी. सिया विल से सिया ने गिरी. सिया कभी मैं नहीं बोलेगी. बट एज यू गेट मेच्योर, 4 years, 5 years, slowly it comes in you, and up to your death, up to your when you go in the woods and everywhere in the sand, up to that ये जो मैं शब्द है ना, ये कभी नहीं जाता, क्योंकि तब आपका नाम एक तरफ हो जाता है. आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट रहता है. छोटे बच्चे को कभी नोटिस करना, ही विल नेम
खुद का भी वो नाम लेगा कि उसने किया, वो खुद को नहीं जोड़ेगा, मगर धीरे धीरे हम अपने आप को इतना प्यार करने लग जाते हैं कि हमारे लिए मैं शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंस क्यों है राइटर में बताएगा। लेट्स सी, कंटिन्यू प्लीज। It was used 3900 times in 500 telephone conversations. बिल्कुल स्टूडेंट्स, यू कैन सी 4000 टाइम्स यूज हुआ इन 500 कन्वर्सेशंस में, यानी कि हर व्यक्ति के लिए जो मैं शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राइटर में क्यों बता रहा है ये हम आगे जाके देखेंगे। प्लीज कंटिन्यू। Friends, you can make more friends in 2 months by becoming interesting in other people than you can in 2 years by trying to get others like you. बिल्कुल, अगर आप वेट करोगे, इफ यू वेट, पीपल वुड टेक इंटरेस्ट इन यू, इट विल टेक 2 years or even 20 years. But if you think prior and you think that this friendship is important for me and you take interest, believe me, it will not take even 2 months. So it's better to first take interest. Many times we are seeing in a party, many times people are reaching and they are saying, यार मेरे घर में कोई नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ और I am getting bored, वहां से किससे मिलूंगा, क्या करूंगा। मगर many people are going alone and they make their friends within minutes. What is the difference? The difference is they start their conversations. I have heard one story in Australia. What happened? Something great has happened, and I will definitely tell you one story. But before that, I want you to do one practical. तो आप सब एक प्रैक्टिकल करना। अभी आप लोगों को मैं 25 सेकंड्स दूंगा, आपको उसके अंदर वो प्रैक्टिकल करना है। उस प्रैक्टिकल को आपको पूरा करना है। एक्टिव हो जाओ, एक बार पेन में छोड़ दो, बिल्कुल आपको एकदम से खड़े होकर कुछ एक्टिविटी करनी है, ठीक है? तैयार है ना? और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूँ और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में दिखाई भी थी। लेट्स सी, ओके? एक्टिव रहना बिल्कुल। आपको 25 सेकंड के अंदर 15 लोगों को हैंडशेक करना है। स्टार्ट, कम ऑन, करिए फटाफट। फास्ट 15 सेकंड्स है। स्टॉप, टाइम ओवर। योर सेकंड्स आर ओवर, प्लीज टेक योर सीट। 14. The thing was very nice. अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो you will learn something very different. The thing is, I told you in 25 seconds you have to meet 15 people, and many people are saying, sir, 14. Why can't 15? You have an option. Nobody has visited me. कोई आया मेरे पास कि सर आपसे मिला देता हूं, मेरे 15 पूरे। No, it's not your fault. It's my fault also. Because when I told you to do this activity, I started drinking water. I started losing your interest. And I sat there in the corner and I did show my interest. और मैंने अपना इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं दिखाया, और उसी वजह से आप लोगों ने भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर मैं यहां आया था ना तो शायद ये बच्चे उठ के मेरे पास भी आ जाते हैं। बट आई डिडंट शो देम इंटरेस्ट, आई जस्ट रिमेन बैक। और दिस इज इन रियल लाइफ ऑल्सो। Until and unless we show interest, people would take interest in you. First, you have to show your interest. दुनिया में कोई भी काम करने निकलोगे, पहले आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, फिर दुनिया इंटरेस्टेड होगी। ये बात याद रखना। आप ये सोचो कि दुनिया पहले इंटरेस्ट ले, उसके पीछे मैं इंटरेस्ट लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक लाइव एग्जांपल, एक रियल स्टोरी बताता हूं। आई हर्ड समवेयर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फ्रोजन हाउस था जो फ्रीजिंग करते हैं ना, माइनस टेम्परेचर रखते हैं, -20 डिग्री वगैरह। तो एक कंपनी का जीएम, जनरल मैनेजर, he somehow in the evening visited there and opened the door and went inside to check everything is okay or not. और do you know what happened? It got locked. अचानक वो लॉक हो गया। अब लॉक हो गया, उसका एक रूल है डोर का, it get opened only from outside, not from inside. So he was locked. Even the voice is not going. He is just this pressing, खोलो, but nobody has heard because that is a big iron and everything is there. और फ्रोजन था, टेम्परेचर -20, -30, कम ऑन, ऐसा टेम्परेचर, क्या होगा पर्सन का? He get freezed. धीरे धीरे he get freezed. उसके ऊपर आइस जमने पड़ी, और शायद 5 minutes if there is a delay, he would have died also.
But do you know what happened when he cried? Nothing has happened. He remembered God. Nothing has happened. Nothing. Suddenly one man came and opened the door. He told, sir, he was a GM of a company. And he was a company employee, but he don't know who is he. Because he was only a watchman. उसको पता ही नहीं था कौन है. But he was a watchman who knows that he is a GM. उसने फटाफट गेट खोला और उसको बाहर निकाला. And this general manager said, who are you? He said, sir, I am a watchman of your company. सर अच्छा तुम मेरी कंपनी के वॉचमैन हो क्या? हाँ. कहता सर आप रोज मुझे गुड मॉर्निंग करते हो, आज गुड इवनिंग नहीं किया तो मैं आपको ढूंढने आ गया. तो सी द थिंग और सी द डिफरेंस कि उसकी एक अच्छी बात कि वो उसे क्या करता था रोज गुड मॉर्निंग. उसको उसने देखा भी नहीं शायद कभी, क्योंकि जब आप वॉचमैन खड़ा है और जीएम निकल रहा है तो जीएम उसकी तरफ क्यों रुकेगा? जीएम कहता था हाँ जी गुड मॉर्निंग और चला जाता था आगे. बट ही सेज गुड मॉर्निंग. एक उसकी अच्छी बात की वजह से वो देखो जो वॉचमैन था उसको ढूंढने निकल गया. तो इफ आई शुड हैव शोड यू इंटरेस्ट यू वुड हैव डेफिनेटली कम टू मी. तो अगर आप लोग नहीं आए तो आप लोग ये मत सोचो कि अरे हम सर के पास नहीं गए यार, सही बात है, सर से तो आगे ला सकते थे. बट द थिंग इज आई ऑल्सो डिडंट शो इंटरेस्ट इन यू. तो सबसे पहले अगर आपको ज्यादा दोस्त बनाने, दुनिया में ज्यादा आगे बढ़ना है, दुनिया में ज्यादा कस्टमर बनाने हैं, दुनिया में ज्यादा सक्सेस होना है, तो सबसे पहले खुद पहल करो. दिस इज द बेस्ट थिंग. प्लीज रीड फर्दर. I would like to ask a question. When you see a group photograph, स्टूडेंट्स एक अच्छी सी बात बताइए मुझे कि आप लोग अपने घर पे बैठे अलग अलग, सडनली योर मदर इज सर्चिंग समथिंग इन बिग एल्बम एंड दैट कबोर्ड इज ऑल filled with your old photographs and old things. आपके बचपन का सामान पड़ा, अचानक suddenly your KG your nursery class snap fall down. आप दौड़ के नहीं भागते, देखते नहीं उसको, देखते हो ना, याद आ जाती है सारी, अरे अरे मेरी नर्सरी की फोटो. इट हैपेंस. सबसे पहले किसको देखते हो? नोटिस बताओ. अपने आप को. यस, वो ये कह रहा है, ध्यान से देखो. क्वेश्चन रीड प्लीज. when you see a group photograph that you are in, whose picture do you look for first? सबसे पहले आप किसको देखते हो? खुद को. बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मोर इन आवरसेल्फ फर्स्ट. प्लीज कंटिन्यू. Yes, people are not interested in you. They are not interested in me. They are interested in themselves. Morning, noon, and after dinner. एवरी टाइम अगर आप नोटिस करो, अगर आप अपने आप को चेक करो, व्हेन यू आर सिटिंग आइडल, आप आज घर जाकर नोटिस करना, व्हेन यू आर सिटिंग आइडल, अचानक रुकना और चेक करना मैं अभी क्या कर रही थी या मैं अभी क्या कर रहा था. आप नोटिस करोगे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने बारे में सोच रहा था. क्योंकि जब कभी आप कुछ भी नहीं करते उस समय आप अपने बारे में जरूर सोचते हो. दिस हैपेंस. यस. All of us, be we students of college, हम कोई भी हो, चाहे हम स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज हो, वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन हो, वी आर वर्किंग अपॉन हिज फोन, ऑल ऑफ अस लाइक पीपल हु एडमायर अस. अभी जो एडमायर वर्ड आया ना, ये हमको एक नई बात सिखा रहा है. एडमायरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. व्हाई एडमायरेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन. Even if we come with beautiful dress, we come with good marks, we gain something, we come first in class, we need admiration. Why medals are given? Why awards are given? Why is it? Only to motivate you. सिर्फ आपको motivate करने के लिए. And that is the thing to make a best human being super best, to make him a more successful, whatever he is. Please further. it is rightly said by Chanakya, a man who is wise thinks before acting. Such man's qualities get embellished with noble thoughts, like a gem set in gold get higher. बिल्कुल चाणक्य ने बिल्कुल सही बात कहा है कि जो आदमी वाइज है, he thinks before and then he acts. When I was sitting once at home, my wife states that yeah, it is my first day of school. It was the year 2010 I think. In Ganganagar she started teaching. तो मुझे बोली कि मुझे ना एक पॉइंट दो. आप दुनिया को बहुत पॉइंट्स देते हो, आप मुझे एक पॉइंट दो कि मैं स्कूल में सक्सेसफुल हो जाऊँ. ये मेरी टीचिंग का एक्सपीरियंस फर्स्ट डे है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा. मैंने कहा नहीं यार, मैं जॉली मूड में, छोड़ जो मर्जी कराना. कहते नहीं एक पॉइंट मुझे आप बताओ विच वुड बी हेल्पफुल टू मी बिकॉज इट इज द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल. तो मैंने कहा भाई मुझे रिकॉल नहीं होगा. शी प्रेशराइज्ड मी कि मुझे एक पॉइंट बता दो. मैंने उसे सिर्फ एक पॉइंट बताया और उस पॉइंट का आज भी वो क्रेडिट लेते कहती रियली वेरी नाइस. मैंने उसको बोला यू डू वन थिंग, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल टीचर, यू रिमेंबर द नेम ऑफ योर स्टूडेंट्स. वो तो क्या दिक्कत है, 30-35 स्टूडेंट होंगे और थोड़ा सा याद. मैंने कहा नहीं,
मैंने स्टूडेंट्स बोले हैं, क्लास के स्टूडेंट ही बोले, स्कूल के स्टूडेंट्स बोले। क्या बात करते हो? मैंने कहा बिल्कुल। और अगर ये कला आ गई ना तो यू बिकम अ बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल। वो कहते कैसे संभव है? मैंने कहा वो बाद में है, मगर अप्लाई इट एंड यू विल सी ए मिरेकल। हल्का सा नोटिस करके दिखाता हूं आपको। किसी भी को ले लेते हैं, अपने लेते हैं नेहा को, कोनिका को। अब मैं इनसे बात करता हूं, गर्ल सुनो, मैं आप लोगों को आज जो लेक्चर दे रहा हूं वो साइकोलॉजी के बेस पे है, और ये लेक्चर आपके लिए बड़ा कामयाब होगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा एक पार्ट है। अब मेरा दूसरा पार्ट देखो, नेहा और कोनिका, आप लोग एक बात सुनिए। आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड मोर ओवर नेहा यू बिलोंग टू यू वांट टू गो फॉर आईएएस आल्सो, so I believe for Neha it is very necessary, even for Konika if she is oriented girls and going for science stream, I believe that Konika type of girls should know everything about the psychology. आपने देखा दो डिफरेंस थे। My first talk was in that talk I didn't named you, my second time I named you. आपको कौन सा अच्छा लगा? बिल्कुल फटाफट बताइए। सेकंड वाला, you notice it. One of my friend, he used to talk with me like this previously. मनोज यार आप ऐसा करो, मनोज तुम ऐसा करो। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझे क्यों अच्छा लगता है, मगर मैंने बाद में बहुत टाइम बाद में इस पे जब सर्वे पढ़ाई करी, देखा, नोटिस किया, तो मुझे पता लगा कि नेम टू अ पर्सन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल इतना अच्छा है, इतना सुपर्ब है, और जो एग्जांपल जिसके साथ है ना उस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते भी हो और आप सब उस आदमी के फैन भी हो। कंटिन्यू रीडिंग। Half the time we are introducing to a stranger, we chat a few minutes and can't even remember his or her name by the time we says goodbye. बिल्कुल, हम लोग we don't even remember the name of a person, और बाद में कहते हैं इसका नाम क्या था। Happens। और ये एग्जांपल मैं आपको एक बहुत लाइव एग्जांपल देता हूँ, प्लीज कंटिन्यू, फिर दूंगा मैं। Friends, during our training program in IPCA Labs Limited, we asked from Amitabh Bachchan the secret of his success in Sahara. Students, I worked for a company that was named as IPCA. Previously, it was of Amitabh Bachchan, and later on, no doubt, they have sold the company, and I believe now Amitabh is in Britain, and Amitabh having a soft corner for the company many times calls him for the lectures and all these things. So, एक बार की बात है, when we were the employees, even 1500 employees were standing, and we were not allowed to ask anything. On the stage, there were 50 regional managers जो पूरे इंडिया को कवर करते थे। जैसे एक स्टेट में एक हो गए, किसी में दो हो गए, राजस्थान में दो थे, कोई छोटा स्टेट है तो एक हो गया, ऐसे करके कवर करते थे। वो स्टेज पे खड़े थे और अमिताभ बच्चन 5 मिनट के आते हैं, बातें भी बताते हैं, कॉन्फिडेंस रखो, ये रखो, मगर अच्छा लगता है सुनना। इवन टीवीज लगे हुए तो वहां पे में दिख जाते हैं बस। वी आर नॉट अलाउड टू एनी क्वेश्चन। प्लीज कंटिन्यू। He then asked us what ओके, we know. सारा वाला वर्ड हो गया क्या? देखिए आपको ध्यान है स्टूडेंट 2001 के अंदर ऑलमोस्ट सारा वाज वेरी फेमस, द कंपनी सारा। ही वाज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड नोन फॉर दैट। ड्रेसेस, आप देखो क्रिकेट के कोई मैच होते थे, सारा की ड्रेसेस चलती थी और बहुत ही फेमस हो रहा था। तो भाई क्वेश्चन पूछा एक रीजनल मैनेजर ने, द नेम ऑफ द रीजनल मैनेजर वाज विनीत कावड़ीकर, और वो बोले उनकी 45 साल उम्र, 4.5 इंच के सारे, 4.5 फुट के सारे थे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, कहते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन प्लीज टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इन सारा। अमिताभ बच्चन जो कि साल में उनसे दूसरी बार मिल रहे होंगे या फिर एक बार ही मिल रहे होंगे, क्योंकि वो लेक्चर करने ही आते तभी मिलते हैं उन लोगों से। मालूम उन्होंने क्या कहा? What we ध्यान से know. सुनो, उसमें लिखा, मैं बताता हूं आपको। अमिताभ बच्चन सेड, मिस्टर विनीत कावड़ीकर, व्हाट डू यू थिंक माय सक्सेस इन सारा। ध्यान से सुनना दोबारा, शायद आपको ध्यान आए कुछ। मिस्टर विनीत कावड़ीकर, आपको क्या लगता है मेरी सक्सेस का रीजन? अब इस लाइन के अंदर हमें बड़ी कॉमन सी लाइन लग रही है, मगर इस लाइन के अंदर एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। वो ये है, इतनी अच्छी बात है वो आप हैरान हो जाएंगे सुन के। One of the girl, she met me. I was in the temple with my wife, and she met me. She came in front of me suddenly, and I told, she saw me. I told her, "शीनू कैसी हो?" तो कहती, "Sir, you know me? आप मेरा नाम जानते हो सर?" मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपसे मैं 8 साल पहले पढ़ी थी और आपको मेरा नाम ऐसे पता है जैसे आप हम कल ही मिले हो। मैंने कहा बिल्कुल शीनू, क्योंकि नेमिंग पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनो, जब अमिताभ बच्चन ने क्या बोला, मिस्टर विनीत कावड़ीकर, जो कि साल में एक बार मिला तो नहीं, विनीत कावड़ीकर जो कि 4.5 उड़ गए थे, इतना कूद गए। कहते सर समझिए आपकी सक्सेस का रीजन। कहते क्या? कहते सर आपकी सक्सेस का रीजन ये है कि आप लोगों को बाय नेम जानते हैं और आप 10,000 लोगों को नाम से जानते हैं। अमिताभ बच्चन के वर्डिंग्स पता क्या थे? कहते नहीं,
मैं 50,000 लोगों को नाम से जानता हूँ। तो नेमिंग पीपल इज दैट मच इम्पोर्टेंट। इफ वी आर सेइंग इन अ रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स, भैया इधर आ, छोटू इधर आ, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम उसका नाम पूछ ले और अगर नाम से पुकारते हैं, इवन आवर मेड सर्वेंट्स अगर हम उन्हें नाम से पुकारते हैं, दे फील मोर हैप्पी rather than saying other names जो हम लोग रख देते हैं लोगों के। प्लीज कंटिन्यू। We understand you can call 10,000 people by their first name. हो गया ये, रिमेंबर से पढ़िए प्लीज। रिमेंबर दैट अ पर्सन's नेम, Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. बिल्कुल व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है उसके लिए। आप कभी भी नोटिस करके देखिए, खुद का एग्जांपल ले लो। आस्था रोड पे जा रही है और आस्था ने देखा अचानक आस्था स्वीट्स, आस्था जरूर देखिए, एक बार आस्था यूज करके जरूर देखेगी। आस्था राइट और रॉन्ग, यू विल डेफिनेटली थिंक, हाँ हो सकता है तुम यूं बोल दो कि यार स्पेलिंग मिस्टेक है, अरे लिखने का तरीका इसका अंदाज है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, मगर आप एक बार उसको जरूर देखो। और ये कोई ऐसा नहीं कि इस आस्था शोरूम इज देयर ओनली देन शी विल सी, इवन आस्था हेयर कट, आस्था छोले भटूरे, इवन देन शी विल सी। बुरे से बुरा भी आस्था अपना नाम जरूर देखेगी, अरे वो मेरा नाम लिखा है, अरे छोले भटूरे में लिख दिया, बट शी विल लाफ ऑल्सो, बट शी विल डेफिनेटली सी फॉर वंस। So this is the most important thing. Personal example दूं, I was once visiting for excursion with my wife in Sikkim tour, और we were getting late. तो मेरी वाइफ कहती यार अब कैसे चलेंगे, अपने लेट हो रहे हैं, ट्रेन का टाइम हो गया, ये चीज ये प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मुझे फोन कर लेते। कहती किसे कर रहे हो, दोस्त को कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा तुम हंसोगी। कहते नहीं बता दो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा हेलो बोला, कहता मैंने कहा उठ फटाफट उठ, आ फटाफट। कहती किसको किया आपने? मैंने कहा मैंने रिक्शे वाले को फोन किया। She laughed so much कि यार आपके पास रिक्शे वाले का भी नाम नंबर है। मैंने कहा है यार क्या करूं, मेरे काम आता है ये, और मैं इसको नाम से जानता हूँ, इस बात से बहुत खुश होता है, और इसको लगता है कि हाँ भैया आएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे जरूर अप्लाई करेंगे। और मेनी टाइम रिलेशन कैसे बने, मैं बस से उतरा, एक दो बार आया मैं, और उतरा तो वो खड़ा था, धीरे धीरे उसमें मेरी ट्यूनिंग बनी, उसके बाद मैं कोई बैठता नहीं। एक दिन तो मैं किसी और पे बैठ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, भैया मैं लेके जाऊंगा आपको, और इतना क्लोज। तो देखो उस दौरान वो मेरे काम भी आया। अब एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमने पर्सनल लाइफ में अप्लाई की थी। लास्ट पॉइंट पढ़िए प्लीज। एट लास्ट I would like to share my own experience with you. When I was told my marketing teacher to apply this professionalism and see a miracle change in your life. See students, this is a story when we thought that we should apply this thing in our life also. हम क्यों ना अप्लाई करें इस चीज को, और हमने प्लान आउट किया कि हम लोग अप्लाई करेंगे अपने हॉस्टल में अपनी वार्डन के साथ, कि क्यों ना हम अपनी वार्डन को कुछ नाम करके, कुछ ऐसा करके थोड़ा सा मोबिलाइज करें और मैडम हमसे खुश हो। मैडम हमसे, क्योंकि वार्डन नाम ही देख लो, फिल्मों में देखते हो आप लोग वार्डन, तो वार्डन स्ट्रिक्ट होती है, और स्ट्रिक्ट है तभी वो कामयाब है। एग्रीड? शी वाज फ्रॉम केरल। तो हमने प्लान आउट किया कि मैडम का नाम जानते हैं। हम अपने डायरेक्टर के पास गए, हमने कहा सर हमारी मैडम का नाम क्या है, वार्डन मैडम का। वो कहते यार मैं 10 साल से हूँ, वो 25 साल से। मैंने कभी पूछा ही नहीं, मैंने मैडम ही बोला है। मैंने कहा अच्छा सर कहते हैं, कहते मुझे नहीं पता यार, तुम ऐसा करो कंप्यूटर लैब में पता करना। द ईयर वाज 97 एंड उस दौरान हमारे कॉलेज में नया बीसी आया था, एंड कंप्यूटर वाज जस्ट सर्व्ड एज अ गॉड। कंप्यूटर को भगवान बनाया था। जूते उतार के जाओ, हाथ धो के जाओ, एसी चलता था कंप्यूटर के लिए, और हाथ में लगा देना खराब हो जाएगा, मतलब समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग डरते डरते अंदर तो चले गए, मगर हमने हाथ नहीं लगाया। हमने टीचर को बोला, हमने कहा सर वो मैडम का प्लीज हमें रिकॉर्ड चाहिए, नाम चाहिए। तो वो कहते ठीक है ठीक है। वो भी ऐसे हाथ पूछ के टॉवल से, पता नहीं जैसे हनुमान जी की पूजा करने वाले हो, और उसको ऑन करा और ऐसे दूर से खराब हो जाएगा ऐसे बिल्कुल ऐसे रखते थे। और वाकई में लैपटॉप आते थे 2-2 लाख रुपए के। तो ऑन किया तो उस दौरान उनका नाम आया, तो उनका नाम देख के मैं हैरान। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम पता होगा नहीं आपको? सुनाओगे नहीं? बैठे बैठे आइए देखो कैसे याद हो जाए नाम एक सेकंड में आपको। ठीक है, अब मैं बोलो बेटा नाम सुना दे, सुना होगा तुम तो कहोगे कि सर इतना बड़ा नाम मैं कैसे याद रखूंगा, राइट? तो वही हुआ, जब उनका नाम हमने पढ़ा तो हम हैरान हो गए, क्योंकि नाम इतना बड़ा था, यूं चल रहा था। हमने यार ये नाम होता है कोई? भाई नाम होता है कोनिका हो गया, ठीक है, नेहा हो गया, गरिमा हो गया, नाम सुने हमने। अब गरिमा दास उडल पटेल करके ऐसे उल्टा सीधा बड़ा सारा नाम हो, कैसे याद रहेगा? फिर भी हमने उसको ब्रेक किया, और हमने ब्रेक करके एक छोटा सा नाम निकाला, अमाला टूटी। हमने कहा इसको ले लेते, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट डे वी रीच्ड इन फ्रंट ऑफ मैडम,
rules of our college was Thursday we used to get feast. And what happened? Madam was quite strict, बड़ी strict थी और हमें बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी. नाइट में मूवी देखनी, ये नहीं करनी, जाना नहीं, जाओगे तो फाइन लगेगा, ये करेंगे, वो करेंगे. नाइट स्ट्रिक्टनेस वाज मोर. तो हमने कुछ स्ट्रिक्टनेस कमी करनी थी, इसलिए हमने ये अप्लाई किया. मैडम केम, हमने नाम लिया, हमने कहा गुड मॉर्निंग हमारा मैडम, हमारा कुटी मैडम. उसने हमारी आंखों में देखा, हमें लगा या तो चढ़ना पड़ेगा या ये बहुत खुश हो जाएगी. और इसमें से कुछ भी नहीं हुआ स्टूडेंट्स. शी स्टार्टेड क्राइंग. शी लिटरली स्टार्टेड वीपिंग. आई सेड मैडम 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 व्हाट हैपेंड. हमने डर लगा कि वी माइट हैव नेम्ड देयर पेरेंट्स, क्योंकि इनका पेरेंट्स की भी नाम इनमें रहती है ना. तो मैंने कहा शायद कोई मम्मी पापा का नाम होगा और वो होगी कोई बात, तो उनको ये लग रहा होगा कि उनको याद आ गई. हमने कहा सॉरी मैडम अगर हमसे गलती हो गई. तो कहती नहीं नहीं बच्चों, एक्चुअली मैं अपना नाम भूल गई थी. मैं इस कॉलेज में 26 सालों से हूँ. हमारे डायरेक्टर को भी 2 साल गलत बता थे. कहती मैं इस कॉलेज में 26 सालों से हूँ और मैं अपना नाम भूल गई थी क्योंकि मुझे सारे मैडम ही कहते थे. तो वो जब उसने अपना नाम सुना, शी गॉट सो मच हैप्पी. और वो खुशी के आंसू थे, दुख के आंसू नहीं थे. वो बहुत खुश थी उस चीज से और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने एक अच्छी चीज करा. मगर ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो बहुत ज्यादा लीनियंट हो गई हमारे लिए. And she started allowing us for going for late night movies and all these things. No, but we have seen somewhere some soft corner in her eyes towards us. कुछ अच्छा देखा. So naming people is that much important. So if you really want to make good friends, if you really want to be a professional, if you want to go for meeting new personalities and you want to flourish your business, this space would be fruitful to you. Apply it in your life. Apply करके देखो. अगर आपको पसंद आता है तो आप कंटिन्यू रखना. अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आवर सेकंड टॉपिक, रिवर्स दिस पेज, वी आर गोइंग विद अ डायनामिक टॉपिक दैट इज आई वांट टू बी ए ट्रू प्रोफेशनल. एनीबॉडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल? कोई जानता है प्रोफेशनल का मीनिंग क्या होता है? व्हाई नॉट, प्लीज टेल. व्यवसायिक. हाँ, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं आप? एक्सप्लेनेशन. अपने वर्क के प्रति बिल्कुल. कुछ और? परफेक्टो. एनीथिंग एल्स? द मीनिंग प्रोफेशनल. प्रोफेशनल इज द वन हु नोज हिज जॉब. जो अपने कार्य को जानता है वो प्रोफेशनल. अगर आपको पता है कि मेरा कार्य ये और मुझे बहुत अच्छे से अपना कार्य आता है तो आप प्रोफेशनल. दिस इज प्रोफेशनल. मगर टुडे वी विल गाइड यू, दिस नोट्स विल गाइड यू टू बी मोर प्रोफेशनल. हो सकता है आप बहुत प्रोफेशनल ऑलरेडी हो, आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता है, मगर कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा इफ यू नो मोर थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू आई वांट टू बी ए ट्रू प्रोफेशनल. हम लोगों ने वर्ड सुना है, अप्लाई बहुत कम किया लाइफ में, तो आज से हम इस चीज को देखेंगे कि हमें क्या सिखाना चाहता है. शैल वी प्लीज कंटिन्यू. Friends, in this world, it is no good to be too simple and straight look. Only straight trees get fell down in the forest. बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप नोटिस कीजिए, तेज हवा चलती है, जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं जल्दी गिर जाते हैं. इस दुनिया में ज्यादा सिंपल, ज्यादा स्ट्रेट आप नहीं रह सकते. पीपल वुड मिसयूज इट. मगर किंकी भी नहीं रहना. डू यू नो द मीनिंग ऑफ किंकी? कांटेदार. मतलब बुरा भी नहीं बनना. ऐसा नहीं आप बुराई करके निकल जाओ, वो भी गलत है. मगर आपको स्ट्रेट भी नहीं रहना. ज्यादा स्ट्रेट रहते हो तो पीपल वुड मिसयूज. These are the lines, 2 lines taken from the book of Chanakya. Please आगे चलिए. Never start with childish talk. Let us take an example of strawberries and fish. देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर whenever we are going to talk with any person, we always talk in childish manner. अब childish बात क्या होती है? childish बात ये होती है कि अगर रचिता को चॉकलेट चाहिए तो ये बोलेगी मुझे चॉकलेट खानी है. अगर इन्हें मूवी देखनी है तो ये अपनी मम्मी को बोलेगी मम्मी मुझे मूवी देखनी है. मगर अगर रचिता को मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल बना दूं तो रचिता अपनी मम्मी को बोलेगी मम्मी आपकी फेवरेट मूवी लगी थी, आपको पता है शाहरुख खान की, आपका फेवरेट है ना? मम्मी कहेगी हाँ मुझे पता नहीं. आपका फेवरेट गाना भी उसमें पता है आपको? मम्मी कहेगी अच्छा बेटा मुझे तो पता ही नहीं. के बाद मम्मी वो तो हट जाएगी अगले संडे, आपको पता है इस संडे अपने दोनों फ्री भी है. मम्मी कहेगी चल चले. हाँ मैं यही तो कह रही थी. और मम्मी ले चलेगी. मतलब रचिता ने डायरेक्ट अपनी मदर को नहीं बोला कि मम्मी मूवी चलो, ऐसा नहीं बोला. तो चाइल्डिश टॉक क्या है?
Childish talk is when a child wants something, he just demands. अगला जो पार्ट आ रहा है उसमें देखो स्ट्रॉबेरी और फिश लिखा हुआ वर्ड। एक छोटा बच्चा है, he is going to capture a fish। अब वो फिश पकड़ने जाता है, वो जो कह सकते हैं उसको ट्रैप है, उस पर वो उस पर्टिकुलर ट्रैप के ऊपर या थोन के ऊपर वो स्ट्रॉबेरी लगा देता है और वाटर में डाल देता है। अब एक्चुअली में क्या है, स्ट्रॉबेरी नहीं अच्छी लगती फिश को। फिश को क्या अच्छा लगता है, अर्थवॉर्म। क्या बच्चा अर्थवॉर्म खाता है? नहीं खाता। बच्चे को पसंद है अर्थवॉर्म? नहीं पसंद। मगर बच्चे को यह भी नहीं पता कि फिश को अर्थवॉर्म पसंद है कि नहीं है, स्ट्रॉबेरी पसंद है कि। उसको ये लगता है कि मुझे जो पसंद है वो फिश को पसंद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दुनिया में हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है, अलग अलग तरीके से आपको संभालना है। देन ओनली यू विल बिकम मोर प्रोफेशनल। मोर पॉइंट्स प्लीज। Why talk about what you want? That is childish. Of course, you are interested in what you want. You are eternally interested in it. बिल्कुल आप डीपली इंटरेस्टेड हो, मगर आप डायरेक्ट क्यों बोलते हो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग? चलिए। But no one else is. The rest of us are just like you. बिल्कुल, बाकी लोग भी तो हमारी तरह ही है। We are interested in, they are interested in what they want. तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? The only way on earth is to influence other people, is to talk about what they want and show them how to get it. सबसे बढ़िया तरीका क्या है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का? कि उन्हें ये बताओ कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें वहां तक पहुंचाओ। That is the best way if you want to impress others. Please continue. Let me share with you a true story. अब एक बहुत अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स, जो शायद आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। मैं आपको दिखाऊंगा इसका रीजन कि मैंने भी अप्लाई की थी और इट द रिजल्ट वाज मिरेकल। इवन मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट मिरेकल जाएगा, मगर मैंने उसको एज इट इज अप्लाई किया और वो मिरेकल गया रिजल्ट। अब वो स्टोरी क्या है, थोड़ा सा रीड करो फिर मैं आपको बताता हूँ। At one time, my director of college, Final Institute of Professional Studies, rented the whole of a certain indoor hotel for 2 days. स्टूडेंट्स एक बार क्या हुआ, हमने पीयूष पांडे नाम के एक पर्सन को इनवाइट किया। पीयूष पांडे इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ वेरी फेमस पर्सन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने कोई एड देखा हो कैडबरीज का, बक्कू पास हो गया, मैनी एड्स जो उस व्यक्ति ने बनाए, और आज भी वो एक इंडिया में एक अच्छा नाम रखता है पर्सन। उसका 2 दिन का सेमिनार था और वी इनवाइटेड हिम फॉर द इंडोर होटल। द होटल वाज नाउ आई बिलीव more stars, but that time that was some star hotel and very costly hotel। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने 2 दिन के लिए रेंट किया उस होटल को। 1 वीक पहले होटल के मैनेजर ने उन्हें बुलाया और जानते क्या था, वो उन्हें बोले सर वी कांट गिव यू दिस होटल। तो हमारे होटल के जो हमारे जो डायरेक्टर थे वो कहते क्या हुआ सर? कहते हमने सर 27,000 रुपीज के अंदर आपसे जो डील की थी वो हम 27,000 के अंदर नहीं दे सकते आपको होटल, हम लेंगे 65,000। हमारे डॉक्टर शॉप की 27,000 की डील अचानक कितने में कन्वर्ट हो गई? 65। और टिकट बिक चुकी थी, एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लॉस था अगर छोड़ते तो। हमारे डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर उन्होंने अपना गुस्सा शो नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलता हूँ। वो बाद में अपना माइंड पहले कूल किया। आफ्टर दैट 15 मिनट बाद वो दोबारा जब उनके पास गए और मैनेजर के पास बैठे, उन्हें कहते सर आई नीड वन पेपर, मुझे पेपर दो। वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखिए पेपर नीचे। जब उन्होंने पेपर दिया तो उन्होंने उस पेपर को देखना शुरू किया और कुछ लिखना शुरू किया पेपर पे। पेपर पे लिखा फर्स्ट पॉइंट कि सर हम आपका होटल ले रहे हैं और इस व्यक्ति को बुला रहे हैं, हम साल के अंदर 10 लोगों को और बुलाते हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो किसी को बुलाने तो हम किसका होटल लेंगे? वो कहते हमारा लोगे? हाँ जी हम आपके लेंगे। सेकंड पॉइंट, सर हम आपका होटल ले रहे हैं, मैं कॉलेज का डायरेक्टर हूं, इंदौर में जितने भी कॉलेजेस है वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन दे विल आस्क फ्रॉम मी दैट व्हिच होटल इज द बेस्ट, मैं किसका नाम लूंगा? वो कहते हैं आप हमारा लोगे सर? यस सर, यही तो मैं चाहता हूं कि मैं आप पे लूं। थर्ड पॉइंट कहता सर एक डायनेमिक पर्सन पीयूष पांडे आपके होटल के अंदर आता है, अगर आप कभी फ्री टाइम में अपने होटल का एडवर्टाइजमेंट करते हो या करना चाहते हो तो इंदौर में 200 न्यूज़पेपर्स है और 200 न्यूज़पेपर्स पे आप ये मान लो एवरेज 10,000 की एड मिनिमम बात है। आप
मल्टीप्लीकेशन का देखिए कितना अमाउंट बनता है। और पीयूष पांडे जब आएगा तो क्या मीडिया कवर नहीं करेगा आपके होटल को? क्या वेन्यू नहीं आएगा आपके होटल का? ये पीयूष पांडे आए कहां से? तो आपके होटल का नाम हर न्यूज़पेपर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, अदरवाइज आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो कहता यार ठीक है, ठीक किया सर। नेक्स्ट पॉइंट, मैं ये चीज नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आप चाहते हैं मैं चेंज करूंगा? नहीं नहीं, हम भी नहीं चाहते। टिक। नेक्स्ट पॉइंट, कहते हैं सर मिडिल क्लास फैमिलीज जो कि डरती है आपके होटल में आते हुए, क्योंकि वो सोचती है 7 स्टार होटल में क्या करेंगे खाना खा के। कई बार भाई अपने सोच लेते कि साइड में जाएंगे या अपने किसी और जगह जाएंगे तो आपको पनीर की प्लेट 700 रुपए मिलेगी, तो अपने फ्रेंड सर्कल में सोच लेते हैं यार ऐसा करते हैं अपने पैगोडा उगाते हैं, अपने किसी और में उगाते हैं, वहां पर हार्डली 300 रुपए की प्लेट मिल जाएगी, अपना ऐसा सोच लेते हैं कभी। तो मिडिल क्लास फैमिली हमेशा इस बात को कंसिडर करेगी, तो वो फियर अप करती है आपके होटल के अंदर आते हैं। और मैंने बहुत से मिडिल अपर क्लास लोगों को इनवाइट किया, यदि वो आएंगे तो क्या वो अपनी फैमिलीज को लाना पसंद करेंगे? नेक्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट होगा आपके होटल का, वो कहते हैं हाँ यार बात, कहते हैं सर बस ये चीजें हैं, अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे रिलेशन बढ़िया रहेंगे और हमारा जो कॉलेज है वो तो प्रॉस्पर करेगा ही करेगा, ये लीजिए आप। और वो ये कह के चले, वो चले तो गए। पीछे से क्या हुआ, 15-20 मिनट्स के बाद में मैनेजर का फोन आया हमारे डायरेक्टर के पास, उन्हें बुलाया, कहते सर एक बात की आपसे कहना चाहते थे। क्या? हाँ जी। कहते सर जो एसी का जो रेंट्स है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा था, इस वजह से हमारा जो चार्जेस था वो हमने इंक्रीमेंट किया, मगर हमने नोटिस किया कि हमारे रिलेशंस भी इसमें डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो हम एक बात चाहते हैं कि हमारे रिलेशन भी डिस्ट्रॉय ना हो और हमारा कंटिन्यूटी भी बने रहे, इसलिए हमने एक फिक्स अमाउंट 35,000 रुपीज फिक्स किया है, प्लीज आप उसको मना मत कीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। हमारे डायरेक्टर ने ओके करना ही था, साइन डील। तो ये टॉपिक कैसे संभव हुआ? प्रोफेशनलिज्म के द्वारा। अगर हमारे डायरेक्टर उसी समय उड़ जाते और ये कहते कि नहीं मैं तो पुलिस को बुलाऊंगा, तुमने ऐसा हमारे साथ चीट किया है, लड़ाई होती, बात बनती, मगर वो काम हो पाता क्या? वो काम नहीं हो पाता। ये प्रोफेशनलिज्म ही था जिसकी वजह से वो काम फुल हुआ। और प्रोफेशनल आदमी इतना प्रोफेशनल होता है कि कस्टमर है ना, मतलब चाहे गर्मी लग जाए उसको, चाहे उसको पसीने आ जाए, चाहे उसको प्रॉब्लम हो, मगर वो अपने जिस शॉपकीपर वाले को अमाउंट अगर देना है ना उसको, तो वो उसी को ही देता है। दिस इज द रियल फैक्ट। आई रिमेम्बर द डे, इट वॉज अ हॉट समर, समर्स तो वैसे उस एरिया में कम होती है, ह्यूमिडिटी वाला एरिया था। आई वॉज वॉकिंग विद माई सिस्टर, द मार्केट वॉज गरियर, द प्लेस वॉज कैलकाटा। मैं अपनी सिस्टर के साथ क्यों चल रहा था, चलते चलते मुझे बस ऐसे लगा कि मुझे कुछ पीना चाहिए कुछ, और मुझे लगा कोई बेवरेज पीते हैं, और बेवरेज के अंदर मेरा प्लान किया मैं फाउंटेन पेप्सी पीता हूँ। वहाँ पर मशीन में पेप्सी मिलती है, तो वो काफी चिल्ड होती है, ग्लासेस के अंदर जो देते हैं, हार्डली 10 रुपीज चार्ज होता है। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि डियर सिस्टर प्लीज मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो। तो डू यू नो व्हाट हैपेंड, माय सिस्टर हाँ हाँ 5 मिनट पिलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम चल लिए। अब वहाँ पर माहौल ऐसा है स्टूडेंट कि गर्मी नहीं है ज्यादा, मगर ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना बहुत आता है और एनर्जी लॉस जल्दी होता है। तो मैंने उसे बोला यार शॉप ये है शॉप, और इधर भी हार्डली 10 रुपीज, यहीं पी लेते, घर जाके थोड़ी ना पीना है। वो कहती बस 5 मिनट पिलाती हूँ। हम और चलते गए 10 मिनट हो गए। आई सेड माई सिस्टर कि माई डियर सिस्टर आई वॉन्ट टू ड्रिंक नाउ इटसेल्फ, मुझे प्यास अब लगी है, ये दुकानें रही, पैसे दो और पी लो। हाँ बस 5 मिनट चलते हैं, तो ठीक है चलते रहे, मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है। When I walk, after I get tired, मैंने कहा ऐसा है पिलाना तो पिला दो और मैं खुद पी लेता हूँ। कहती घड़ी देखिए 3 मिनट बाद मैं तुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दूँ। मैंने कहा ठीक है। हम चलते रहे 3 मिनट, बस 2 मिनट चलते रहे। अचानक एक लेन की तरफ उसने मुड़ा और एक शॉप के सामने खड़ी हुई। वो जो शॉप थी, उस शॉप का जो साइज था वो ऐसा था कि एक पर्सन अगर अंदर गया है और दूसरे को जाना है तो पहले को बाहर आना पड़ेगा, इतनी शॉप। और मुझे ये नहीं समझ आया कि इतनी सी शॉप को के आगे मेरी सिस्टर को रोकने के लिए अपने ब्रदर को इतना पैदल चलाया उसने, अभी तक समझ नहीं आया। मगर जैसे ही हम उस शॉप के सामने गए, मेरे सिस्टर को शॉपकीपर ने सिर्फ एक ही बात बोली, उपाध्याय जी नमस्कार। मैं समझ गया कि एक वेल एजुकेटेड लेडी, एक बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी अपने ब्रदर को 20 मिनट से थर्स्टी रख रही है। क्यों रख रही है? बिकॉज शी नीड्स एन एप्रिसिएशन, शी नीड्स
the thing for which she is craving a lot, and that is only one thing, that is this नमस्कार. क्योंकि अनजान शॉप पे अगर वो जाती तो उसको वो नहीं मिलता, और एक वेल एजुकेटेड लेडी सिर्फ इस चीज के लिए क्राइव कर रही है कि मुझे एक अच्छी जगह से नमस्कार मिले, तो वो सारी जगह को छोड़ के सिर्फ उसी शॉपकीपर को अपना पैसा देना चाहती है. वो चाहती है कि मेरे पैसों से सिर्फ ये व्यक्ति कमाई करे. दिस हैपन्स. वो जो दुकानदार है वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है, मगर एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी जरूर है, क्योंकि उसने उस कस्टमर को ऐसा बनाया हुआ है कि वो कस्टमर सब कुछ छोड़ सकता है, पसीना मर सकता है, अपने ब्रदर को भूखा प्यासा रख सकते हैं, मगर सेल उसी शॉप की करवानी. और उसने क्या किया, उसने सिर्फ मेरी सिस्टर को रेस्पेक्ट दी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ. कोई उसने ऐसा नहीं है कि उसने कहा 9 रुपीज दूंगा, मैं 8 रुपीज दूंगा, मैं आपको टोकन दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसने वही रुपए काटे थे जो काटे, मगर उसने सिर्फ क्या दिया, रेस्पेक्ट. उसने सिर्फ हाथ जोड़े और ये बोला नमस्कार उपाते, एंड दैट वाज इनफ टू बी अ मोर प्रोफेशनल पर्सन. और शायद वो एक सक्सेसफुल शॉपकीपर भी होगा, जिसने एक कस्टमर को इतने दूर से खींच लिया, तो वो एक सक्सेसफुल शॉपकीपर तो होगा ही. प्लीज नेक्स्ट पॉइंट. Why can't we adapt this same psychology to our day-to-day dealings? When we have brilliant ideas, instead of making others think it is ours, why not let them cook and steer the idea themselves? स्टेज समझते हो स्टूडेंट्स? सब्जी में आप क्लीनिंग करते हो ना, वो स्टेज होती है. आप ऐसे कहते हैं, हाँ, तो वो स्टेजनेस होती है. अब देखिए, बिल्कुल See, what happened once, I was visiting from a holy place in New Year, and I suddenly thought that I haven't brought a gift for my son. So I thought that what should I do? I just stopped my car. I told my colleagues कि यार मेरे से गलती हो गई. वो कहते क्या? मैंने कहा यार मेरे सन के लिए कुछ नहीं लाया, टोटली लिया, तो my son would definitely get unhappy with me. तो मैं वो मुझसे नाराज होगा, कुछ ऐसा करते हैं, अपने कुछ उसके लिए ले चलते हैं. तो वो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये शॉप्स हैं, अपने ले लेते हैं. The place was hardly हनुमान में 60 किलोमीटर बचे थे. मैंने कहा ठीक है यार. हम रुके, एक शॉप देखी हमने, हम उसके अंदर गए, एक लेडी बैठी थी. हमने कहा मैडम कितने साल का बच्चा और एवरेज ये सिस्टम है? कहती हाँ ये है, ये है, ये है, ये है. हमने कहा ठीक है ठीक है. हमें एक चीज पसंद आई, ये कितने की है? कोई होगी 500, 600, 400. हमने कहा मैडम ये देखो आप, दे दो सर. हम घर आए. अब जेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें सारी चीज पता लगता है ना. उन्हें लगता है हमारा बच्चा इतना मोटा है, या उन्हें लगता है हमारा बच्चा इतना पतला है. उन्हें समझ नहीं आती बात की, और वो ड्रेस नहीं आई. अब वो ड्रेस नहीं आई, कोई बात नहीं थी, मगर उस ड्रेस नहीं आने के बाद भी ना हमने कोई एक्शन नहीं लिया. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हमारे तरफ से. 1 मंथ बाद हमें याद आई कि ये ड्रेस पड़ी है, और इस ड्रेस के बारे में हमने एक बार भी सोचा नहीं. हमने रिप्लेस कराने की बात सोची, उस लेडी को कॉन्टेक्ट करने का सोचा, और हमने किसी को वहां से भेजा. वो लेडी बहुत स्ट्रिक्ट थी. वो कहती नहीं, ये आइटम वापस नहीं होगा, ये आइटम इस जगह का था, डिस्काउंट रेट में था, तो ये आइटम इसमें नहीं होगा. तो वो जो पर्सन थे वो वापस आ गए. तो मुझे माइंड में क्लिक हुई कि यार मेरे डायरेक्टर ने ना एक बार ना एक बहुत बड़ी विक्ट्री करी थी, वो सायाजी होटल के अंदर पीयूष पांडे आया था जब, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं. तो मैंने कहा मेरी फोन पे बात करा लो मैडम से. तो कहते ठीक है, हम आपकी बात करवा देंगे फोन पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकते. मैंने कहा ठीक है. उन्होंने मेरी बात कराई. मैंने कहा हेलो मैडम. उसकी पहली लाइन पता क्या थी, मैं वापस नहीं करूंगी. मैंने कहा मैडम मैंने आपको जो हेलो किया है वो हेलो सुनने के लिए किया है, और ये सुनने के लिए नहीं किया कि आप वापस नहीं करेंगे. आप वापस मत करना मैडम, आप हेलो का तो जवाब दे दीजिए. कहते हाँ हाँ जरूर जरूर हेलो. मैंने कहा मैडम हमारे जो किड्स है वो हर साल, हर 3 महीने, हर 6 महीने में ड्रेसेस की जरूरत रहती है. तो हम पसंद करते हैं कि हम एक अच्छी शॉप से ड्रेस लें, और आपका जो वे था, the way which you have given us the service, the hospitality, everything was best. और मैंने आपको उस चीज के लिए धन्यवाद देने के लिए फोन किया. कहती हाँ ये तो करना ही पड़ता है, कस्टमर्स है तो हमें अपना बिजनेस तो चलाना ही चलाना. मैंने कहा यस मैम. अब आप आई ट्रैक पे थोड़ा सा कि अब हाँ बोलना शुरू किया. मैंने उनको सेकंड बार बोली कि मैडम हमारे जो किड्स हैं उनकी ड्रेसेस हम यूजुअली खरीदते रहते हैं, तो ये तो मेरे नोन्स के प्लेसेस हैं, तो अक्सर हम लोगों का आना जाना लगा रहता है. तो आप नहीं चाहेंगे हम दोबारा आपकी शॉप पर पहुंचे फटाफट, जल्दी से जल्दी? कहते जरूर आओ. मैं क्यों नहीं चाहूंगा, तो जरूर चाहूंगी कि आप हमारी शॉप पे आइए. मैं कहा बिल्कुल मैडम. और आप ये भी चाहेंगे कि हमारे जो मार्केट में रिलेटिव्स हैं वो आपकी शॉप पर ही आकर आप सामान लें? कहती हाँ बिल्कुल.
मैंने कहा किसी ने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया था, मैं इसीलिए आपकी शॉप पे आया था। वो कहते अच्छा ये बात ठीक है। मैंने कहा हाँ ये करिए। फिर मैंने कहा मैडम एक बात और कि आपकी जो ट्राउजर है जो भी मैंने लिया है उसमें जो क्वालिटी है वो नंबर 1 है, सिर्फ साइज का था मैटर। कहते नहीं वो वापस ली, उसकी बात मत करो, वो चीज वापस नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बात करी। कहते ओके। मैंने कहा मैडम आपका यूजर टाइम से रहता है। कहते देखो सुनो, मंडे को हम इतने बजे दुकान खोलते हैं। और उसने मेरे को लंबी कहानी सुनाई जिसमें मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन नहीं था कि उसके टाइम के अनुसार जाऊंगा। मैं तो अपने हिसाब से जाऊंगा और अगर वो मिल गई तो मैं ले लूंगा, यही था। मगर उसने मेरे को सारा सिस्टम बताया कि मंडे को हम इतने बजे खोलते हैं, इतने बजे ऑफ करते हैं, ये करते हैं, संडे को हम सिर्फ 4 घंटे खोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरीके से। मैंने उसकी बात बहुत ही डिसेंट तरीके से सुनी, बहुत अच्छे से सुनी। उस दौरान मैंने कुछ अच्छी बात भी उसे बोली और जो जेन्युइन भी थी और सच्चाई में ना उसने अच्छे से हमें डील किया। फिर मैंने उन्हें एक बात और बोली, मैंने कहा मैडम अगर आप सबका चेंजेस करेंगे इस तरीके से तो अपनी शॉप कैसे चलाएंगे? तो मैंने आपको सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फोन किया कि हम लोग 1 मंथ डिले हो गए आपकी चीज को रिप्लेस करा देंगे। कहती हाँ ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक था। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, फिर भी हम तो आपकी शॉप पे आएंगे। आप ऐसा कीजिए, अपनी वो एड्रेस वगैरह आप दोबारा भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपसे एक बात और पूछनी थी। कहती हाँ पूछो। मैंने कहा मैडम ये जो ड्रेस थी ये हमारे यूज के नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल साइज में मैच नहीं कर रही। आपने शॉप पे रख लीजिए, अगर आपकी शॉप पे निकलती है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं निकलती है कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे घर पे यूज नहीं हो रही उसकी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही भिजवाया था। वो कहते नहीं। फिर मैं उसका मैंने कहा आपकी तो शॉप पे सेल आउट हो जाएगी। कहते नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं मानी। लास्ट में जाते थे मैंने उनका, मैंने कहा मैडम सिर्फ मुझे आपको थैंक यू बोला था, सो अब मैं आपको धन्यवाद देकर फोन काट रहा हूँ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कहती सुनो एक बात। मैंने कहा हाँ। कहती अब की बार कर देती, अगली बार नहीं करो। मैंने कहा ठीक है मैडम। उसके बाद मैंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ ही बोलूंगा तो बहुत बड़ा जवाब देगी। तो उसने चुपचाप वो करवा दिया मैंने ड्रेस चेंज। तो सिर्फ वो मैंने अप्लाई करके देखा। अब ये क्या हमारी पर्सनल लाइफ के तरह भी हम लोग ये चीजें छोटी छोटी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। कैसे? लेट्स सी, प्लीज रीड आउट। They will then regard it as their own. They will like it. और लोगों को अगर इस तरीके से बात करेंगे ना, जैसे रचिता ने अपनी मम्मी से बात करी, मम्मी शाहरुख खान की फिल्म आपका फेवरेट, मम्मी वो गाना आपका फेवरेट, मम्मी भी चल 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 बेटा तेरे पापा कह रहे आजा आजा फटाफट मूवी दिखाते हमने और ले जा इसको। तो दिस हैपेंस, दिस रियली हैपेंस, ये होता है ऐसा। मगर इसमें क्या होगा, लोग उस आइडिया को अपना मानेंगे। अदरवाइज क्या होता है, वो उसे प्रेशराइज समझते हैं कि यार मुझे ये करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं सोचना, दूसरे आदमी को हमेशा ये करवाना है कि भाई ये आइडिया तुम्हारा है और तुम इस आइडिया को करो, तुम्हें बेनिफिट है। चलिए प्लीज। I would like to share my own experience. When I was in 10th standard, I did not like to take milk. यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मिल्क अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो व्हाइट मिल्क पीते हैं? 1 2 3 मैं नहीं पीता भाई, व्हाइट नहीं पीता मैं। 4 5 हाँ एवरेज अच्छी है भाई व्हाइट मिल्क की। आप लोग व्हाइट मिल्क नहीं पीते? कुछ डालते हो मेरी तरह ना? हाँ मुझे कुछ जरूर चाहिए, अदरवाइज आई कांट ड्रिंक मिल्क रियली। तो व्हाइट मिल्क पीने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। This happens with me condition when I was in 10th standard. I don't like milk at all. मुझे मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो my mother, who is 10th standard of that time, जो कि 10th पास है उस टाइम की, जो कि आज की BA के बराबर है, और इतनी एजुकेशन नहीं होने के बावजूद उनका माइंड देखो, उन्होंने अपने बच्चे के लिए वो प्रोफेशनलिज्म अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, जो वेल एजुकेटेड लोग नहीं कर पाते। जो मेरी सिस्टर को देखो वेल एजुकेटेड होते हुए भी वो टिक टिक करते उस कस्टमर तक चली गई, सिर्फ ये देखने के लिए उपाध्याय जी नमस्कार, सिर्फ उस चीज के लिए। वो कस्टमर देखो, वो शॉपकीपर देखो कितना प्रोफेशनल। तो ये जो मेरी सिस्टर, ये जो मेरे मदर थे, मदर ने एक काम बात सोची। मेरी मदर ने कहा कि मेरा बेटा दूध नहीं पीता, और सच्ची मुझे बात पता थी। उन्होंने एक दो बार डांट के देखा तो रिजल्ट नहीं आया, मगर अब ऐसी कंडीशन नहीं है, अब उनको पता है कि दूध बहुत अच्छे से पीता हूँ। मगर द डे वाज दैट व्हेन आई वाज 10th स्टैंडर्ड, और मैं कभी कभी तो वॉश फेशियल के पास जाकर, और मुझे वॉश फेशियल के पास दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। रीजन क्या था आप समझ ही गए, और मैं टैप चला जाता था और वो मिल्क चला जाता था बेचारा कहीं दुनिया में, तो मुझे अच्छा लगता कि मैंने पी लिया। एंड दिस हैपेंड। तो पेरेंट्स आर पेरेंट्स, उन्हें जज हो जाता है। तो दे डिडंट स्कोल्ड मी, दे टोल्ड मी इन वेरी डिफरेंट मैनर। उन्होंने उस सिचुएशन को बड़े अलग मोड में हैंडल किया।
वो जो मोड था वो बड़ा डिफरेंट था। वो मोड था दे आस्क्ड मी हु इज योर फेवरेट। और हमारे टाइम में ना उन दिनों घायल फिल्म चलती थी बहुत। और फिल्में बताऊं आपको, मतलब बहुत हीरो थे, मगर ऐसे हीरो फिल्में थी ऐसी, हालांकि गोविंदा की फिल्में बहुत चलती थी, मगर देयर वर मेनी मूवीज। तो मैंने कहा ये मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट है, ये फेवरेट। तो मेरी मदर बोली तुम ऐसा बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। कहते ये मिल्क पीते हैं इसलिए ये ऐसे है, और तुम मिल्क नहीं पियोगे तो तुम नहीं बनोगे पियो। और मुझे वो बात है ना बहुत अंदर तक लगी, और मैंने उसको अप्लाई किया। और मेरी मदर ने मुझे बिना स्कोल्ड किए वो हैबिट डलवा दी, जो हैबिट मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी मुझे पड़ेगी, मुझे ये कभी अच्छा लगेगा, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर ये कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन में भी हो जाता है, खास करके मदर्स को बताऊंगा कि रॉन्ग डायरेक्शन में ऐसे होता है। माय नेफ्यू he also didn't take milk when he was in 7th standard. I once visited, my sister told ये दूध नहीं पीता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने सिखा दिया, मैं भी इसको सिखा दूं। मगर मैंने उसे प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज्यादा अप्लाई कर दिया। मैंने कहा चैनल कौन सा देख रहा है? कहता 10 स्पोर्ट। मैंने कहा किसको देख रहा है? तो वो 2-4 नाम बताए, योगा सिन्हा और मीना और क्या, हाँ जॉन सिन्हा। तो 2-4 और नाम थे उसके पास। तो मैंने कहा यार तू ऐसा कभी नहीं बनेगा, तू ऐसे ही रहेगा ढीला सा। तो कहता क्यों, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। मैंने कहा मिल्क पीते हैं यार, तू कहाँ, तू तो मिल्क पीता ही नहीं शायद। कहता नहीं मैं पीऊंगा, मैं बनूंगा, मैं एनर्जेटिक बनूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने कहा यार तू कैसे करेगा? मैंने उसको कहकर आ गया और मैं फ्री हो गया। तो मेरी सिस्टर का कॉल आया, वो मुझे बोले कि अरे इसको फोन करके मना कर थोड़ा, ये दोपहर में दूध मांगते हैं, यहाँ पर मदर डेयरी का दूध इतना बढ़िया नहीं आता, हम भी चाहते दोपहर में इसको दूध मिले। तो यानी कि वो खाने की जगह भी क्या मांगने लग गया था, मिल्क। तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, इतना भी अप्लाई हमें नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Friends, people who can put themselves in the place of other people, who can understand the workings of their minds, need never worry about what the future has in store for them. स्टूडेंट्स, माइंड, ये जो वर्ड है माइंड, आप मुझे बता सकते हो माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है? एनीबॉडी? ज्योति मैडम, माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है? नहीं। अंशुल? नहीं। ओके। ओहो, माइंड से नर्वस सिस्टम नहीं होता डियर। हाँ जी, माइंड जो वर्ड है वो मन है, वो दिमाग नहीं है। हमें लगता है माइंड से काम नहीं कर रही है, तो माइंड मन होता है माइंड, ब्रेन इज दिमाग, ये डिफरेंस होता है। अब ये होते कितने अच्छे हैं, इनमें पावर कितनी होती है उसको देखो। देयर इज वन वर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितने लोगों ने वर्ड सुना है? मैंने तो सुना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड। जिसने सुना है वो मुझे मीनिंग बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? हम जिसको अट्रैक्ट करते हैं वो चीज वो चीज हमारे पास जरूर आती है। वेरी गुड। शाहरुख खान ने कही थी ना कि जिस चीज के लिए आप, हाँ क्या था, जिस चीज के लिए आप मन से, क्या कहता था शाहरुख खान ने, पूरी कायनात, हाँ तो उसके पाने के लिए पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ कहा था शाहरुख खान ने, है ना? तो वो सच्चाई है, रियल लाइफ की बात है कि 10 जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा वर्क करता है। और वो करता कैसे, पहले उसकी वर्किंग समझ लो हल्की सी। एक, हम सब अलग अलग गॉड गॉडेस को मानते हैं, एग्री करते हो? किनको मानते हो आप? हनुमान जी। हाँ जी, किसको मानते हो आप? हनुमान जी। हाँ जी, हनुमान जी कितने फैन है मेरी तरह? वेरी गुड। यहाँ पे तो मेरे हनुमान जी के फैन है सारे। गुरु नानक देव। देखो मैंने थर्ड पर्सन लिया, चेंज हो गया, नेक्स्ट पर्सन लूं शायद थोड़ा चेंज हो जाए, कोई माता जी बोलेंगे, कोई श्री राम बोलेंगे, कोई शिव बोलेंगे, राइट? हम सब अलग अलग गॉड गॉडेस को मानते हैं। अच्छा, हम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान सारे एक है, एग्री? गॉड इज ओनली वन, ये बात भी हमें पता है। मगर उसके बावजूद हम लोग अल्लाह नहीं बोलेंगे, नहीं डांटेंगे घर वाले, अल्लाह को हाथ नहीं जोड़ेंगे, घर वाले डांटेंगे। गुरु नानक देव जी को क्यों मानेगा? हनुमान जी है ना हमारे। मगर ये नहीं पता कि ये सब एक ही तो रूप है, मगर हम लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए इनको ब्रेक कर दिया। और आपको पता है इवन हनुमान जी को हमने ब्रेक कर रखा है।
बैठे हनुमान जी, खड़े हनुमान जी, खम्बे हनुमान जी, घड़ी हनुमान जी। मैंने एक दिन देखा ढेरगा हनुमान जी, जयपुर से पहले स्टेशन आता है, मैं हैरान देख के। फिर देखा कुर्सी वाले हनुमान जी, फिर देखा खम्बे वाले हनुमान जी, ऐसे नहीं है नाम। मतलब हनुमान जी को भी हमने अपने बेनिफिट्स के लिए ब्रेकअप कर दिया। बट डू वी नो दैट देयर गॉड इज ओनली वन? तो साइंस स्टेट्स दैट देयर इज वन यूनिवर्स हु नोज ओनली वन वर्ड। दुनिया में एक यूनिवर्स है, दुनिया में एक ही गॉड है जिसको सिर्फ एक ही शब्द आता है, और वो शब्द है तथास्तु। क्या शब्द है? अगर वो वर्ड हम लोग हर समय रिकॉल रखें तो हमसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। हमारा जो माइंड हो, हमारा जो ब्रेन हो, वो सब हमारी हेल्प करेगा। सिर्फ हमें एक शब्द से डरना है। वो शब्द क्या है स्टूडेंट्स? तथास्तु। Whenever we are at home, many times our friends comes, अचानक किरण गजल बोलती है कि भाई पार्टी दे दे, क्योंकि देख यार भिखारी पैसे नहीं यार, 1 रुपया नहीं, तू पार्टी मांग रही है। मगर ये बोला हुआ गलत जाएगा, क्योंकि ऊपर से वो क्या बोल रहा है? तथास्तु। आपने बोला पैसे ही नहीं है, वो क्या बोलेगा? तथास्तु। One girl, her name was Neetu. She was from I think Karanpur, Rarewal village. She was sitting in front of me. I was here. वो पहले दिन जब मेरे पास आई तो वो इधर बैठी मेरे पास, कहती सर मेरी वीकनेस बता दो। पहले अब कोई फर्स्ट डे मेरे पास आए तो ज्वाइन करने आए बेचारा, और मैं उसकी कमियां बता दूं तो बताओ आएगा नहीं आएगा? वो भाग जाएगा, राइट? तो मैंने उसको बोला पहले दिन मेरे से अच्छी बातें सुनिए ताकि आप ज्वाइन करो। उसके बाद मैं बुरी बातें बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बुरी बातों की जरूरत है, मगर पहले दिन नहीं बता सकता मैं तुम्हारी वीकनेसेस। कहती नहीं सर बता दो कोई बात। मैंने कहा नहीं पहले दिन नहीं, तुम दौड़ जाओगी, मुझे लॉस हो जाएगा। कहती नहीं सर आप बता दीजिए। मैंने कहा तुम इम्पेशेंट हो। कहती सर इम्पेशेंट कहाँ हूं सर? मैंने कहा ये देखो आपने भी शो किया कि आप इम्पेशेंस है आपके अंदर। कहती सर बात तो सही है। उसे ज्वाइन कर लिया। 3-4 दिन बीते। एक दिन ऐसे सामने बैठी थी, मैं वीकनेसेस बता रहा था, एक डे था, एंड दैट डे आई वाज जस्ट टेलिंग द वीकनेसेस ऑफ एवरीबॉडी। तो उसका जो नंबर आया मैंने उसको कहा तुम्हें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो कहती सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर मेरी जॉब पक्की है सर, मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। मैंने कहा बस ये बात है ना अपने अंदर रखना, और हर समय अपने माइंड को है ना एक्टिवेट रखना इस बात के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऊपर से क्या बढ़ देगा आपको? इवन आप अपने पेरेंट्स को बोल के रखो कि कभी भी फीस के लिए बोले, कभी भी फ्रूट्स के लिए बोले, कभी भी क्लोथ्स के लिए बोले, कभी भी स्कूल कॉलेज के लिए आपको बोलना पड़ रहा है घर पे कि भाई यार मेरी ना वो एडमिशन करवाना है, तो घर पे मदर आपकी ये ना बोले कि बेटा घर में पैसे नहीं है कर ले, नहीं, क्योंकि जैसे आप बोलोगे वो क्या बोलेगा ऊपर से? तो आपको क्या बोलना है? बेटा बहुत बढ़िया है, वो घर में तेरे को देने का मन नहीं, कर लेना थोड़ा। मगर आपको ये नहीं बोलना कि नहीं है। ये चीज इतनी ज्यादा इफेक्ट करती है। आई रिमेंबर द डे व्हेन आई थॉट कि मैं इस चीज को कैसे अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा। आई थॉट वंस आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, द कंपनी नेम वाज IPCA IPCA। इट वाज ऑलमोस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या हो सकता है? मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब, एक सुनते ही आप लोगों को आराम नहीं आ गया? ऐसे कहा गवर्नमेंट जॉब ठीक है। हैपेंस कि गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या नहीं करना पड़ता, और क्या आता रहता है, होता है ऐसा हमारे देश में, एग्रीड? इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग कहते हो गवर्नमेंट जॉब, हाँ फिर ठीक है आराम होगा। हैपेंस द कंपनी विच आई वाज वर्किंग इन 2007 आई रियलाइज्ड दैट ये कंपनी में मुझे अमाउंट तो आ रहा है, मगर ये कंपनी मुझे क्या बना रही है? ये कंपनी मेरी बॉडी में रस्टिंग कर रही है। रस्टिंग समझते हो बच्चों? जंग लगना। आपकी बॉडी में अगर जंग लगता रहेगा तो क्या होगा? डेमोलिश हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे अपना खुद का काम करना चाहिए, मुझे इस चीज का शौक है, मुझे एजुकेशन में, मुझे बुक्स में कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए, और मैंने उसको किया। दैट टाइम मेनी ऑफ माई कलीग्स, इवन माई पेरेंट्स, दे फियर्ड दैट लिविंग अ जॉब may make you unemployed and you will have to suffer a lot. I don't know. I can earn 4 times if I really work with sincerity. If I work, I'll get, and I'm quite confident enough that I'll work. और वो संभव भी हुआ। The day when I am teaching you the secret, the law of attraction, I was sitting and chatting with my wife generally, and she stated me almost 5-7 years, यार आपको ड्राइविंग नहीं आती? मैंने कहा हाँ यार मुझे ड्राइविंग नहीं आती। आपको आनी चाहिए यार। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही गई। और नेक्स्ट डे शी वेंट हर इन-लॉज, वो मेरे इन-लॉज यानी कि अपने पेरेंटल हाउस में चली गई।
अब वो मेरी तो नींद उड़ा गई ना ये बात बोल के कि आपको टाइमिंग नहीं आता। मुझे बड़ा अलग सा लगा। मैंने किसकी हेल्प ली? मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया। मुझे लेक्चर देना था मॉर्निंग में, मैंने एक कार को काटा यार दिया, देखता रहा, लेक्चर देता रहा। अचानक दिमाग में क्या हुआ, घंटियां बजने लगी, टन 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 टन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करेगा ही करेगा, गारंटी है। आपको जो भी चाहिए मिल सकता है, सिर्फ आपको वे पता हो उसको पाना कैसे। 9 o'clock मेरा माइंड एक्टिवेट हुआ, 10 o'clock 10:30 11 के आसपास 12 o'clock मैं फ्री हुआ। मैंने कार वाले को फोन किया। कार वाला गंगानगर में एक जोशी है, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा हेलो, मैंने कहा मेरे को कार सीखनी है। कहता अभी आगे मैंने सिखा दूं। मैंने कहा सुन आज सीखनी है। कहता भैया ऐसा नहीं होता, मैं फ्री नहीं हूँ और मेरा ये शेड्यूल है, सुबह में एक मैडम आती है, फिर एक जेंटलमैन है, उनके 4 बच्चे, फिर ये है, फिर वो है, फिर उसने अपना पूरा शेड्यूल बता दिया। कहता अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, क्या बात है। मैंने उसे दोबारा फोन किया। मैंने कहा सुन, मैंने कहा तू जोशी है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, इतने रिलेशन निकालूंगा कि तू मुझे कार भी सिखाएगा और मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अगर तू सच्ची में कमाना चाहता है तो आ जा, जितने पैसे लेता है उतने दूंगा, वरना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तेरे को। और इतनी रिश्तेदारियां निकाल के तेरे सामने ले आऊंगा और तू दुखी होकर सिखाएगा मेरे को कि ये भैया को मैंने एक पैसा नहीं लेना और मुझे इन्हें सिखाना भी पड़ रहा है। सोचने लग गया। कहता ऐसा पक्का है? मैंने कहा हाँ पक्का है। कितने लेता है? कहता 2 मैंने पूरे 2 दूंगा, 1900 भी नहीं दूंगा। मैंने कहा मगर मेरा काम मुझे आज से चाहिए। कहता यार भैया टाइम नहीं है, वरना सिखाया था। मैंने कहा बोल शेड्यूल बोल। कहता देखो 6 बजे एक मैडम है, 7 बजे ये, 8 बजे हुआ है। मैंने उसके बाद तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। कहता फिर ऐसा करो आप अगले महीने सीख लेना। मैंने नहीं यार मुझे सीखनी आज। मैंने कहा उठता कितने बजे? कहता वो 5 उठता हूँ बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा 4 बजे उठ गया। शॉक हो गया। कहता सर भैया इट इज नॉट पॉसिबल, 4 बजे कैसे उठी होगा? मैंने कहा मैं उठाऊंगा तुझे। कहता आपने उठा दिया, आ जाऊंगा, नहीं उठाया नहीं आऊंगा। मैंने कहा पक्का। मैंने कहा और तू आ गया, तेरी अमाउंट लेना, उसके बाद मेरे को सिखाना। कहता डन। अब मुझे तो नींद कहां से आ रही थी स्टूडेंट्स, मुझे उसे उठाने था, फिर मैं खुद नहीं दस बुरा था। मैंने उसे उठा दिया, मैंने भी अलार्म लगाया होगा मगर मैंने उसे उठा दिया। उठा आना पड़ेगा, मैं आना ही पड़ेगा, फटाफट वो आ गया। अब मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला वर्क था ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने तो उधर जा मैं चला लूंगा। मुझे लगा वो वीडियो गेम चलाती है, खेलते ही थे पहले किसी टाइम में वो वीडियो गेम जा जाके शॉप से। तो मैंने यार यूं ही तो चलाने बैठा, तो वो तो 1 सेकंड झटका रहा, बंद हो गई। कहता भैया इधर आ जाओ, महीना लगेगा अभी। मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। कहता क्या? मैंने कहा तू नहीं समझेगा, तू सिखा चुपचाप। कहता ठीक है मैं सिखाता हूँ। अगेन ही स्टार्टेड, मगर मुझे इतनी नहीं आई जितनी उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी। उसने कहा आप ठीक सीख रहे हो। नेक्स्ट डे जब वो आया तो मैंने उसको उधर हो जा, मैं चलू। कहता भैया फिल्म गई, मेरे उधर हो जाओ। मैंने कहा नहीं चलाता, मैंने थोड़ी चलाई। कहता आपने कहां सीखी? आपके पास कार है, उस दौरान मेरे पास कार नहीं थी। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम में कार नहीं है। कहता फिर आपने कहां सीखी? मैंने कहा मैंने रात को सोते समय सीखी। वो बहुत जोर से हंसा, हाँ भैया ने रात को सोते समय सीखी। मगर वो बात सच थी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था और मैंने वो एक्टिवेशन कर रखा था। मैंने ये देखा कि मैं नींद ले रहा हूं और मुझे भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरा माइंड किसमें है? कार सीखने में। मैंने उससे जो सिस्टम सीखा, पहले सीखा कि गियर कैसे लगता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था पहला गियर ये है, रिवर्स हमेशा ये होता है, मुझे ये नहीं बातें नहीं। मगर मैंने किसी तरीके से उससे सीखी है बात। और फिर मैंने नाइट में सच्ची में प्रैक्टिस करी, मैंने सच्ची में ब्रेक लगाई, सच्ची में गियर लगाए, वो नहीं माना। कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा मैंने किया। कहता कितनी देर चलाई थी कार? मैंने कहा घंटा चलाई। वो और जोर से कहता 1 घंटा हमने नींद में कार चला ली। मैंने कहा हाँ यार चलाइए। कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता यार। मैंने कहा सच्ची में चलाइए, विश्वास कर। कहता नहीं यार। तो मैंने कहा देखता चलो। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी चलाई। 3rd डे क्या हुआ, वो आया ना, मैंने यार बाहर आ गया था घर से। मैंने कहा एक छोटा सा काम करी जरा। वो आया, मैं कार लेके चले गया। कहता भैया रुको। मैंने कहता बाजार मत जाना। मैंने कहा हाँ बाजार, मतलब याद दिला दिया तुमने, बढ़िया किया ना, अच्छी बात करी। जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं, अब यार ईंट मत उठाना, ईंट मत उठाना। कहता ले ईंट मार दिया। तो हाँ बाजार हाँ। मैंने बाजार की तरफ ले लिया। मैंने कहा फिर ज्यादा तो जाओ और क्या। वो चलाए पीछे से, मैंने चला लिया किसी तरीके से। ठीक है, वो कहता यार आ गई है, रिवर्स सिखाता हूँ। उसने फिर मेरे को रिवर्स करना सिखाया, थोड़ा टाइम लगा उसमें। थर्सडे आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा था। मैं मेरे डॉक्टर के पास गया। उनकी जो वो मेरे डॉक्टर ना बहुत अच्छे टर्म्स थे मेरे, और अब और ज्यादा बन गए, क्योंकि अब उनकी वाइफ मेरी सिस्टर है। मैं उनको सिस्टर बनाया, और वो मेरे डॉक्टर साहब रहे नहीं। इसने वो डॉक्टर राजेंद्र श्रावणी, मेरे बहुत क्लोज रिलेशन थे।
मुझे बहुत दुख है, वो नहीं है। तो मैं उनके पास गया, उनकी मतलब सिस्टर मिले, तो सिस्टर कहती है ये मारुति कार खड़ी है। मैंने कहा अरे, फिर मेरे माइंड की घंटियां बनने लगी, हाँ लॉ ऑफ डायरेक्शन काम कर रहा है। कहती है खड़ी है, इसको देखो थोड़ा सा। मैंने कहा देखोगे इसको, मैं ले जाता हूँ। और कहते इसको निकाल दो। मैंने कहा नहीं निकालना नहीं, इसको पहले चलाएंगे, पहले इसको सही करवाएंगे, उसके बाद निकालेंगे। वो कहते कैसे? मैंने कहा देखो इसके ऊपर अपने थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपने बेचेंगे तो ज्यादा अच्छा अमाउंट मिलेगा। और मैंने उनको अच्छा अमाउंट दिलवाया भी। जब चलाकर चीज दो ना तो वो अच्छी बिकती है, एक बड़ी बड़ी चीज होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने उसको निकाला और वो चल रही कंडीशन में थी, उसको उसके पास ले गया मैं मैकेनिक के पास, और थोड़ा बहुत कुछ बातें थी जैसे ग्रीस वगैरह करवाने, कुछ करवाई, उन्होंने ऑयल चेंज किया, चलने लगी। नेक्स्ट डे जब थर्सडे आया, नून आई, तो मैंने उसको दोबारा बुलाया जोशी को। मैंने कहा ये कार है। कहता ले लिया? मैंने कहा नहीं, मुझे मिल गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया। कहता यार चलाओ फिर इसको। मैंने कहा फिर मेरे को दोबारा सब कुछ बता। फिर उसने सारा मुझे बताया कार के बारे में, ये होता है, ये होता है। मैंने कहा बस ठीक है यार, अब मुझे तेरी जरूरत है तो मैं बुलाऊंगा तुझे, वरना तूने मुझे बहुत सिखा दिया। कहता लोग है ना एक एक दो हफ्ते सीखने के बाद मुझे फोन करते रहते, भैया आओ यार सिखाओगे, जाओ आपने अमाउंट लिया है, आप ये चौथे दिन ही छोड़ रहे हो। वो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे हेल्प चाहिए तो जरूर बुलाओ। कहता ठीक। थर्सडे इवनिंग आई, माय वाइफ जस्ट कमिंग आउट ऑफ स्टेप डाउन ऑफ बस, शी सॉ मी, आई वाज विद द कार। हालांकि मेरी नहीं थी, बट आई वाज विद द कार। शी गॉट शॉक। तो बोली ये क्या है? मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कहती अच्छा इतना वर्क करता है? मैंने कहा करता है, सिर्फ आपको ये चीज करनी आनी चाहिए। और ऐसा नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी की लाइफ में, हम सब अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मेनी टाइम्स वी आर सर्चिंग विद स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को वहां खड़ा कर लेते हैं और कई बार उनसे पूछते हैं कि भाई आप अपनी अपनी वीकनेस बताओ, हमारी वीकनेस बताओ, उसे सॉल्व करो। तो मैंने एक बार एक बच्चों से पूछा कि बच्चों मैं एक बुक लिख रहा हूँ जो आप लोगों के हाथों में आती है ना, आपको मैं बुक्स देता हूँ सबको स्पोकन वाली। तो मैंने कहा एक बुक लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश की, इन दिनों मेरा मन नहीं है लिखने का, मेरा मन नहीं कर रहा, 2013 की बात है। तो 9th क्लास का एक बच्चा, 8th में हो ना तो देखो 9th क्लास का एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता सर मैं आइडिया दूं? मैंने कहा हाँ दो यार। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका कितना अच्छा गया। कहता सर आप अपने रूम में उस बुक का कवर पेज बनवा लो और अपने रूम में लगा लो, आप जब उठो आप उस बुक को देखो और वो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी कि मेरे को बुक पूरी करनी है। हालांकि मेरे रूम के अंदर मुझे नहीं परमिशन मिली कि रूम खराब लगेगा, मैंने अपने लैपटॉप कवर पेज पे वो चीज लगा दी। जब मैं खोलता तो स्क्रीन सेवर की वजह से सबसे पहले वो बुक का मुझे टाइटल दिखता, हालांकि ये नहीं था, वो दूसरा था, मगर मुझे दिखता और मोटिवेट करता वो काम मुझे करना है। और आई डिड, करते 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 ऐसा वो स्टूडेंट्स की वो बुक लिखी गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना अच्छा वर्क करता है हमारे लाइफ। लास्ट पॉइंट्स, Tomorrow you may want to be persuade somebody to do something. Before you speak, pause, ask yourself, how can I make this person want to? बिल्कुल। कल यदि सिया को मैगी खानी है तो सिया अपनी मम्मी को ये नहीं बोलेगी कि मम्मी मुझे मैगी खानी है, क्योंकि मम्मी डांट लगाएगी। मम्मी कहेगी मैगी बहुत खराब करती है हार्ट को। तुम्हें पता है मैगी कितनी खराब करती है? मैगी वाला जो नूडल्स है जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, मैगी में ये है, मैगी में वो है, मैगी बैन हो गई थी। सिया जो बात करेगी, सिया कहेगी मम्मी आज आप टायर्ड लग रहे हो, आज आपके लिए कुछ बना लीजिए। मम्मी बड़ी खुश, अच्छा मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं मम्मी आप रेस्ट कर लो, आप आज थके हुए चल रहे हो। मम्मी कहेगी हाँ मैं थकी सी लग रही हूँ, मम्मी को भी महसूस हो जाएगा हाँ मैं थकी हुई हूँ, ठीक है, और वो बैठ जाएगी। सिया कहेगी मम्मी मैं क्या बनाऊं, मुझे कुछ आता नहीं। मम्मी कहेगी भैया ये बात तुझे कुछ आता तो नहीं। सिया कहेगी देख लो मैगी बड़ी थी, हाँ हाँ बेटा मैगी बना देती, ठीक है। तो डोंट से डायरेक्टली टू एनीबॉडी एनीथिंग, indirectly everything happens in the world. So student, this was our topic. Apply it. How can I make more friends? How to be more professional? Okay, thank you very much.